So once again, welcome students and a very sweet good morning to all of you. Welcome to Suraj School Balana live classes, and this is your English language class offered by excellent department of English language. And as you know, yesterday we had started our first concept of English language for the senior classes. Today we are going to start our second step of that first concept, as we had learned yesterday that how to make a simple sentence. Now today we will learn how to make question and how to make negative sentence. Though there are some parts of our conversation, as yesterday we had started, I would like to let you revise once like that. Yesterday we had started senior concept number first. Okay, first concept. In that concept we had learned just only how to make simple sentence, and in this first concept we had learned yesterday about how to express in future action. About in future action. So that is expressed, as I told you yesterday, that in first language we express by using some certain suffixes like ga, ge and gi. Along with it, I told you how to express the same things in our second language and in our target language. इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि हम अपने target language यानी कि इंग्लिश में इस सब को कैसे एक्सप्रेस करेंगे. That is very simple. As I told you, क्या बताया था? Yes, right, good. I told you yesterday we use some certain suffixes like will and shall to express these things, or you may say about the future action. इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? will and shall. Very nice. Yesterday you had learned how to make a simple sentence like that. If we talk about the first language, हिंदी में अगर बात करें कि फ्यूचर एक्शन कैसे होता है हमारा, कि मैं स्कूल जाऊंगा. ओके, क्या यूज किया है हमने? जाऊंगा. वेरी नाइस. तो हमने सेकंड लैंग्वेज में कैसे बनाया था बेटा? वेरी नाइस. वी हैव टू यूज द सेम सफिक्सेस. तो हमने बनाया था कि आई विल go to school. Is it right? Yes. So we have to use these things to make the simple sentence in our second language, or you may say our target language, English. Okay. Another example like that, if we talk about one more sentence I would like to make like that, कि मैं खेलूंगा. खेलना क्या होता है बेटा? प्ले. राइट, गुड. ओके, तो मैं खेलूंगा, इट मींस आई, और गागे के लिए क्या बताया था आपको? वेरी नाइस. विल वी हैव टू यूज आई विल, और खेलना क्या होता है? प्ले. इज इट क्लियर? So like this, we had made yesterday how to make a simple sentence. हमने सीखा था कि simple sentence कैसे बनाते हैं. Now there are two more phases in our conversation. अगर हम अपनी बातचीत की बात करें तो हमारे बातचीत में दो और स्टेप्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में. यानी कि अगर हमें उत्तर देना आता है तो हमें आना चाहिए कि किसी चीज के लिए, उसी चीज के लिए, लाइक आपने बोला कि मैं खेलूंगा, तो इसी से रिलेटेड हमें मना करना भी आना चाहिए और हमें क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछना भी आना चाहिए. ओके, सो लाइक दैट दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? पॉइंट टू बी नॉट इट, वेरी सिंपल. अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हिंदी में बोल देंगे कि मैं नहीं खेलूंगा. क्या होगा बेटा? मैं नहीं खेलूंगा. इट शोज नेगेटिविटी. ओके, मींस सेंटेंस इज नेगेटिव. ओके, नहीं खेलूंगा. हाउ कुड वी शो द सेम थिंग्स इन आवर सेकंड लैंग्वेज? सेकंड लैंग्वेज में इस चीज को कैसे शो करेंगे? वेरी सिंपल. गुड. वी हैव टू यूज जस्ट ओनली नाउ. ओके, आफ्टर विल के बाद क्या यूज करेंगे? नाउ. वेरी नाइस. तो इट विल बी एज इट इज, आई विल not play. Is it clear? Simple. If we have to show the negative sentence by using not after will or before the verb. Okay, so that is our negative sentence. More example like that. Along with it, I told you that just reading is not enough to learn how to speak. अगर आपको बोलना सीखना है तो इसको पढ़ना और सुनना काफी नहीं है.
इसको पढ़ने और सुनने के साथ साथ आपको कोशिश करना है, ट्राई करना है, बोलने की कोशिश करना है। ओके, लाइक अनदर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा ओरली आपको कि जैसे ये बनाया है कि मैं नहीं खेलूंगा, ऐसे ही अगर दूसरा एग्जांपल ले कि मैं बोलूंगा, बोलना क्या होता है? राइट, गुड, स्पीक। ओके, और मैं बोलूंगा, गागे के लिए क्या बताया था मैंने आपको? विल और स्टेप। ओके, मैं यानी कि आई, और बोलना क्या होता है? स्पीक। और गागे के लिए क्या यूज करेंगे बेटा? विल। तो एज इट इज रख देना है। जैसे मैं खेलूंगा के लिए हमने आई विल प्ले बनाया था, तो बोलूंगा इसका मतलब आई विल स्पीक। गुड, वेरी नाइस। ओके, आई टोल्ड यू अबाउट सब्जेक्ट्स आल्सो यस्टरडे. Before making simple sentence, I made you learn about subjects because there will not be any kind of a change in will and shall. Okay, if we change subjects, okay, अगर हम subjects को change करते हैं तो उसमें will और shall पर कोई effect नहीं होगा. Okay, so before that, just before some time I made you one example कि मैं बोलूँगा, I will speak. वो बोलेगा, he. We have to use the rest of the things will be as it is. He will. बोलना क्या होता है? Speak. Okay? तुम बोलोगे, he की जगह क्या आ जाएगा? Good, very nice. क्या आ जाएगा? You. Okay? हम बोलेंगे, we. Good, very nice. वे बोलेंगे, वेरी नाइस, गुड. क्या जाएगा बेटा? दे. ओके, मैं बोलूंगा आई, पापा बोलेंगे, सो सब्जेक्ट इट इज आल्सो ए सब्जेक्ट. ओके, पापा. ओके, ब्रदर बोलेंगे ब्रो. ओके, सर बोलेंगे सर. मींस देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ चेंज इन केस ऑफ विल. इट विल बी एज इट इज. ओके, विल का विल ही रहेगा. ओके, एंड सब्जेक्ट्स can be changed according to the requirement of the sentence. Understood? So there will be just as it is. तो अभी आपने सीखा है कि नेगेटिव सेंटेंस कि मैं बोलूंगा. Understood? I will speak. बताया मैंने कि मैं बोलूंगा, I will speak. तो अभी आपको बताऊंगा कि इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे. जस्ट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा आपको बताया है मैंने कि नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या यूज करना है? नॉट यूज करना है. ओके, तो आपने सिंपल सेंटेंस बना दिया है कि मैं बोलूंगा. इट मींस आई विल स्पीक. नाउ वी विल मेक आवर नेगेटिव सेंटेंस ऑफ इट. वेरी सिंपल. अभी सिखाऊंगा आपको नेगेटिव कैसे बनाते हैं. मैं बोलूंगा, यू मेड इट, बनाया आपने, आई विल स्पीक. और नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको एक चीज बताया था कि हमें क्या यूज करना है? नॉट यूज करना है. क्या यूज करेंगे? नॉट. तो नहीं बोलूंगा, I will not speak. ओके, नहीं खेलूंगा. खेलना क्या होता है? गुड, राइट, प्ले. नहीं जाऊंगा, जाना क्या होता है बेटा? राइट, गुड, वेरी नाइस. जाना होता है गो. सो I will not go. So that is our negative sentence. So now we have learned two things. अभी हमने सीखा है दो चीजें. ओके, कि सिंपल सेंटेंस यानी कि आंसर कैसे देना है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, किसी को मना कैसे करना है. जब हम किसी से बात करते हैं, फॉर एग्जांपल पापा हमसे पूछते हैं कि बेटा खाना खाओगे, तो क्या होता है? दो ही चीजें होती हैं, या तो हम मना करते हैं या फिर हम यस बोलते हैं. ओके, सो इफ यू हैव टू रिफ्यूज, अगर आपको रिफ्यूज करना है तो क्या बोलोगे? मैं नहीं खाऊंगा. गागेगी, इट मींस will we have to use I will not eat. ओके, और अगर आपको खाना है तो क्या बोलोगे? I will eat. But the main thing is remaining how to make question in a sentence. अभी एक मेन चीज हमारी बाकी है कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, because it plays an important role in the case of language science. Okay, so you have learned many things in the help in our grammar, English grammar. Since 6th class you have been learning for last many years, but still there are some problems, but with the help of this program these will be clear, this will be sorted out. Okay, just you have to listen and try to speak. Okay, along with it. Okay, after that I will let you know some homework also today. आज आपको कुछ होमवर्क भी बताया जाएगा.
जो आपको करना है. ओके, so let's move to the next point. Now we will learn how to make question. I hope that this is clear to you all. ये आपको क्लियर है कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं. We have to make just help with the help of not, and not will be used after will. Okay, not किसके बाद यूज होगा बेटा? will के बाद यूज होगा in the case of negative sentence. Okay, now let's move to the next point. Now we will learn how to make question. Making question is very easy beta. Okay, because if we talk, if we have to have any kind of conversation with anyone, if we have to discuss any point, then question also plays an important role. Okay, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि आपके टीचर पूछते हैं कि बेटा क्या हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या फिर पूछते हैं कि बेटा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो इट इज एन क्वेश्चन एंड यू हैव टू रिप्लाई ऑफ इट. आप उसका क्या करोगे? रिप्लाई करोगे कि सर हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे या फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड, पहले क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, आफ्टर दैट वी विल रिप्लाई. सो स्टिल वी हैव लर्न दिस ओनली हाउ टू रिप्लाई एंड हाउ टू डिनाई ऑल थिंग्स. ओके, रिलेटेड द पॉइंट. नाउ वी विल लर्न हाउ टू मेक क्वेश्चन. बेटा आई विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल अ सिंपल सेंटेंस. कोई भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि लाइक मैं नहाऊंगा. ओके, आई विल, नहाना क्या होता है? बाथ. एंड व्हेन वी टेक बाथ ऑन आवर ओन, जब हम खुद से नहाते हैं, सो इन दैट केस इट बिकम्स आई विल टेक बाथ. ओके, आई विल टेक बाथ. अंडरस्टूड? वो नहाएंगे, दे विल टेक बाथ. ओके, ब्रो नहाएगा, ब्रो विल टेक बाथ. अनदर एग्जांपल हम बताना चाहेंगे कि मैं टीवी देखूंगा. टीवी क्या होता है बेटा? टीवी होता है. तो देखना क्या होता है? यस, राइट, गुड. देखना होता है वॉच. ओके, आई विल वॉच टीवी. ओके, आई विल वॉच टीवी. अंडरस्टूड? मैं नहीं देखूंगा, इन दैट केस वी हैव टू यूज हियर नॉट. यहां क्या यूज कर देंगे? I will not watch TV. Understood? Now, as I told you, we have to learn how to make question. अब हमें सीखना है कि question कैसे बनाएं. So very simple, like that. An example कि वो TV देखेगा. It means we are talking about third person. He will watch TV. Understood? So now, if we have to make question, listen बेटा, listen carefully. It is an important point. सुनना है कि अब हमें सीखना है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे. सो वेरी सिंपल बेटा, वी हैव टू यूज विल बिफोर सब्जेक्ट. विल को सब्जेक्ट से पहले लेंगे. अंडरस्टूड? एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी एज इट इज. बाकी ऐसे के ऐसे रह जाएंगे. ओके, लाइक मेक वन एग्जांपल कि हिंदी में अगर हम बात करें, क्या आप टीवी देखोगे? यानी कि सिंपल क्वेश्चन जिसका आंसर यस और नो से होता है, वो हम कैसे बनाएंगे? विल को सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे. अंडरस्टूड? सो लेट्स मेक एन एग्जांपल. लाइक दिस इज द सेंटेंस. ये हमारा सेंटेंस है, ही विल वॉच टीवी. तो किसी ने पूछा क्या वो टीवी देखेगा? सो हाउ वुड वी हैव टू मेक क्वेश्चन? विल सबसे पहले आ जाएगा. ओके, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी एज इट इज. विल ही watch TV? Though this is a question, then there will be question mark. इसके end में क्या होगा? Question mark होगा, क्योंकि ये एक question है. Okay? Will he watch TV? Understood? क्या वो टीवी देखेगा? Okay? Another question, अभी आपने पूछा होगा, दिमाग में क्वेश्चन आया होगा माइंड में कि ये he से बनाया है. Other subjects is like that. If there had been bro, अगर यहाँ पे bro होता कि bro टीवी देखेगा, so what would have been here? यहाँ क्या होता? Will bro watch TV? Okay? अगर यहाँ पे होता कि रोहित will watch TV, then in question also we have to use the same subject. Will Rohit watch TV? Understood? Another example, अगर यहाँ पे होता
कि आई विल वॉच टीवी, मैं टीवी देखूंगा. ओके, in that case there will be some change while making question because we do not put a question on our own. हम खुद से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. So in that case I will be changed in you. Okay, क्योंकि हम खुद से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन सेकंड पर्सन पूछते हैं. ओके, so in that case I का क्या बन जाएगा, you बन जाएगा. यानी कि आपने पापा से बोला कि पापा मैं टीवी देखूंगा, तो अब पापा आपसे पूछेंगे क्या आप टीवी देखोगे, यानी कि आई का क्या बन जाएगा बेटा, वेरी नाइस, क्या बन जाएगा, यू. विल यू वॉच टीवी. अंडरस्टूड. अनदर एग्जांपल लाइक किसी ने आपने बोला कि हम क्रिकेट खेलेंगे. ओके, हम क्रिकेट खेलेंगे. लेट मी राइट फर्स्ट, इट विल बी क्लियर बाय राइटिंग. पहले लीजिए नहीं, आफ्टर दैट आई विल मेक यू क्लियर दैट कि हम क्रिकेट खेलेंगे. वी विल प्ले क्रिकेट. ओके, हाउ डू वी हैव टू मेक क्वेश्चन ऑफ इट, कैसे बनेंगे क्वेश्चन. अगेन देयर इज वी, सो विल को हमें सब्जेक्ट से पहले लेके आना. वेरी नाइस, लेके आएंगे विल वी. अब यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन होते हैं. ओके, एक तो हम खुद से ही पूछ रहे हैं, ग्रुप से पूछ रहे हैं क्या हम क्रिकेट खेलेंगे. ओके, या फिर जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर सेकंड पर्सन हमसे क्वेश्चन पूछता है कि सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो फिर वी का क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा. ओके, विल यू, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी एज इट इज. विल यू प्ले क्रिकेट. अंडरस्टूड. आंसर क्या होगा, yes, we will play it. Understood? If we have to refuse, अगर हमें मना करना है तो हम क्या यूज करेंगे, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, we have to use not here. Okay, so if we have to refuse, in that case we will not play cricket. Understood? We will not play cricket. This is our negative sentence. So all three things you have learned here. But सभी तीनों चीजें सीख ली आपने कि कैसे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं. ओके, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आंसर कैसे देंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट. वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिवाइज इट. फिर से रिवाइज करना चाहूंगा कि फर्स्ट सीनियर कॉन्सेप्ट, हाउ टू एक्सप्रेस द फ्यूचर एक्शन. फर्स्ट लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हिंदी में एक्सप्रेस करेंगे बाय यूजिंग दीस कीज गा, गे एंड की. ओके, हिंदी का हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, वी विल रिकॉग्नाइज, हम इसको पहचानेंगे बाय लुकिंग दीस थिंग्स, बाय चेकिंग दीस थिंग्स गा, गे, गी इन एंड ऑफ सेंटेंस इन फर्स्ट लैंग्वेज. और जब हमें ये सब चीजें मिलेंगे तो हम किससे शो करेंगे, वी विल शो बाय यूजिंग विल एंड शैल. क्या यूज करेंगे बेटा, विल एंड शैल. ओके, लाइक द फर्स्ट सेंटेंस इज कि हम क्रिकेट खेलेंगे. ओके, वी विल प्ले क्रिकेट. ओके, दिस इज आवर सिंपल सेंटेंस. लाइक दिस यू हैव टू मेक many more sentences. आपको बहुत से sentences बनाने हैं. ओके, यू मे राइट इन योर नोटबुक, लिख भी सकते हैं आप अपने नोटबुक में. लाइक सिमिलर सेंटेंसेस यू मे मेक कि मैं टीवी देखूंगा. ओके, हम मार्केट जाएंगे. ओके, शॉपिंग करेंगे. अंडरस्टूड, कि छोटा भीम देखेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे. ओके, लाइक दिस मेनी मोर एग्जांपल्स यू मे लाइक दैट. आप बता सकते हो कि मैं होमवर्क करूंगा. अंडरस्टूड, और मैं मैथ्स होमवर्क करूंगा, हिंदी होमवर्क नहीं करूंगा. ओके, मैथ में कौन सा होमवर्क करोगे कि मैं फर्स्ट चैप्टर सॉल्व करूंगा. हाँ, आई विल सॉल्व फर्स्ट चैप्टर. सो लाइक दिस मेनी मोर सेंटेंसेस यू मे मेक. अंडरस्टूड. सो आफ्टर दैट दिस इज आवर सिंपल सेंटेंस. नाउ वी विल मेक द क्वेश्चन. Question is made with the help of will. Will we have to put before subject. Okay, like that. As I told you कि we का क्या बन जाएगा, you. When we have to make question, because we do not put a question on our own. हम खुद से question नहीं पूछते हैं, तो we का क्या बन जाएगा, you बन जाएगा. Okay, will you play cricket? So that as you know that this is a question, so question mark will be put here. Okay, to make negative sentence we have to use not in after
आफ्टर विल इन सेंटेंस, विल के बाद क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे, अंडरस्टूड, लाइक दैट, नो वी विल प्ले क्रिकेट, ओके। सो नाउ आई वुड लाइक टू लेट यू नो सम टास्क व्हिच यू हैव टू डू एट होम। अभी मैं आपको कुछ टास्क बताऊंगा, थोड़ा सा होमवर्क बताएंगे कि आपको क्या करना है घर पे। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी योर रूटीन। सबसे पहले आपको अपना रूटीन देखना है कि आप अपने रूटीन में क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, बाय यूजिंग दीस थिंग्स, ओके। यू हैव टू डू सम थिंग्स कि आप अपने रूटीन में कैसे शो करते हो फ्यूचर एक्शन को, ओके। फ्यूचर एक्शन को शो करते हो, फर्स्ट लैंग्वेज में करते हो ना, यस। तो वही आपको क्या करना है, कुछ एक सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में लिखना है, ओके, इन फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी में लिखना है। आफ्टर दैट यू विल ट्राई टू राइट इन सेकंड लैंग्वेज आल्सो बाय यूजिंग विल एंड शैल, ओके। आफ्टर दैट व्हाट इज योर होमवर्क? होमवर्क क्या है आपका बेटा? यू हैव टू ट्राई टू स्पीक आफ्टर राइटिंग इट, ओके। डोंट हैव टू क्रैम, रटना नहीं है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग फ्यूचर एक्शन, कि ये हमारा क्या है, फ्यूचर एक्शन है, और इसको हम विल और शैल की हेल्प से शो करते हैं। तो रटना नहीं है कि जो कॉमन चीज है कि फ्यूचर एक्शन को कैसे शो करेंगे, बाय यूजिंग विल एंड शैल। सो मेक at least minimum 20 sentences in your notebook you have to write, and after that by using will and shall you have to translate same sentences in our target language in English. After that all these 20 sentences which you use in your daily routine in first language you have to try to speak in English. So I hope this point is clear to you all. So that's all for today, and we continue with these live classes from Suraj School Balana.